Now we are talking about the next topic, that is the DNA sequencing. And in last class we have already seen that the PCR, DNA library, cDNA library, genomic library. So the most sophisticated and most advanced, and we can say the most typical topic of our recombinant DNA technology is the DNA sequencing. DNA, just that DNA is basically a nucleic acid, and so each and every nucleic acid is made up of the nucleotide, because all the nucleic acids are the biopolymers. So each and every biopolymers are made up of the nucleotides, that is the unit is called nucleotides, and each and every nucleotides are joined together by means of phosphodiester bond. For example, these are the nucleotides, and these nucleotides are bind together by means of the bond. The name of this bond is phosphodiester bond. Now we are talking about what is the order of the nucleotides. As you know that there are the four kinds of the bases A, T, G, C. The DNA have the mainly three composition: number 1 sugar, number 2 base, number 3 phosphate. The sugar is deoxyribose sugar. It is the constant. It cannot be changed. Phosphate is H3PO4. It will also the constant. It cannot be changed. But the base are the purine and pyrimidine, and there are four kinds of the bases A, T, and GC. So all and every type of the DNA is made up of the four kinds of bases: adenine, guanine, thymine, and cytosine. And to know the order of this ATGC, to know this order of the ATGC, that means each and every DNA having its own type of the sequence of the ATGC. And to know the order of this ATGC is called as DNA sequencing. So DNA sequencing is nothing but it is a determination of the order of the nucleotide. And basically nucleotide meaning ATGC. Because we know that the nucleotide is sugar, base, and phosphate, having sugar, base, and phosphate. But sugar cannot be changed, phosphate cannot be changed. The variation is only due to the bases. And there are four kinds of the bases, ATGC, and these four bases are ordered in a different type of the DNA in a different manner. तो आप स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी डीएनए की सीक्वेंसिंग होगी वो किस पर बेस्ड होगी, एटीजीसी पे बेस्ड होगी. जैसे जैसे एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन का जो भी अलग अलग टाइप का सीक्वेंस होगा उस डीएनए का सीक्वेंस एक दूसरे से डिफर माना जाएगा. तो हम डीएनए सीक्वेंसिंग को बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. हमें डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक, इसके बाद आप देखिए कि अगर हम दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है. तो डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो आपका एक फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेसिस. अगेन ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस मींस वी फोकस ओनली ऑन एटीजीसी बेसिस इन ए जीनोम दैट मेक अप ए डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है अगर वो डीएनए से बनकर बना है तो उस डीएनए का जो बेसिस है उन बेसिस का ऑर्डर क्या होगा ये पता करना, ये हमारा कहलाता है डीएनए सीक्वेंसिंग. तो डीएनए सीक्वेंसिंग इज सच काइंड ऑफ ए टेक्निक ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट सिंपली डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एटीजीसी बेस पेयर. ओके, नाउ अब अगर हम ये बात करें कि डीएनए सीक्वेंसिंग कितने तरह की हो सकती है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 मैनुअल सीक्वेंसिंग, नंबर 2 ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग. अगर हम मैनुअल सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग देन इज टोटली द बेस्ड ऑन द मशीन. सो वी कैन से इट इज अ मशीन मेथड एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द सेकंड जनरेशन. So, overall the DNA sequencing can be classified into the two categories. Number 1 manual and number 2 automated. Manual जो फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, इनिशियल सीक्वेंसिंग है, और ऑटोमेटेड जो मशीन सीक्वेंसिंग है और सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग है. हमें जो पढ़ना है वो मैनुअल मेथड्स पे कंसंट्रेट करना है और
मैनुअल मेथड में फिर हम देखेंगे कि दो तरह के एग्जांपल्स हैं, एक चेन टर्मिनेशन और दूसरा केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। तो जो मैनुअल मेथड में चेन टर्मिनेशन मेथड होता है, इसको हम लोग सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। अब इसको सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द एफ सैंगर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैंगर मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। And why it is called chain termination method? Because here the DNA sequencing is identified on the basis of the termination of the chain. Which chain? DNA chain. तो ये हम आपको बताएंगे जब आपको डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो यही हमारे सिलेबस में भी है, यही वाला टॉपिक। तो इसी टाइप को हमें पढ़ना है और तब हम बताएंगे कि why it is called chain termination method. And then it is also called dideoxy method because here the DD and TP are used. DD and TP, dideoxynucleotide triphosphates are used. That's why it is also called a dideoxy method. Again, it is also called enzymatic method because number of enzymes like DNA polymerase is used. That's why it is called a enzymatic method. तो हमें जो फोकस करना है वो चेन टर्मिनेशन मेथड पे करना है। उसके बाद आप आ जाइए केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, जो हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। केमिकल डिग्रेडेशन मेथड क्या होता है? केमिकल डिग्रेडेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड ए मैक्जम एंड गिलबर्ट मेथड बिकॉज दिस मेथड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्जम एंड गिलबर्ट। दैट्स व्हाई दिस केमिकल डिग्रेडेशन मेथड इज आल्सो नोन एज मैक्जम एंड गिलबर्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैनुअल मेथड्स हैं उसमें दो मेथड्स आएंगे, एक सैंगर मेथड और दूसरा मैक्जम एंड गिलबर्ट मेथड। सैंगर मेथड को हमें पढ़ना है, मैक्जम गिलबर्ट मेथड, केमिकल डिग्रेडेशन मेथड को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद ऑटोमेटेड मेथड में हम देख लेते हैं, जो कि हमें पढ़ना तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि ऑटोमेटेड यानी मशीन मेथड में क्या क्या आते हैं। ऑटोमेटेड मेथड या मशीन मेथड दैट इंक्लूड द सेकंड जनरेशन मेथड, और इसमें आप देखेंगे कि डीएनए सीक्वेंसर की हम बात करते हैं। करोड़ों रुपए की आती है डीएनए सीक्वेंसर। उन डीएनए सीक्वेंसर से हम जब सीक्वेंसिंग करेंगे तो बिल्कुल ये मशीन बेस्ड सीक्वेंसिंग होती है और इसको हम जो है सेकंड जनरेशन कहते हैं, और ये सैंगर मेथड से काफी फास्ट मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो कि आज के डेट में यही सीक्वेंसर यूज हो रहा है। भले हमारा बेसिक प्रिंसिपल सैंगर मेथड से स्टार्ट होता है, लेकिन नाउअडेज number of the research laboratory and number of the molecular biology laboratory of the biotechnology only uses the next generation sequencing. तो next generation sequencing में कौन कौन से methods आते हैं? Pyro sequencing, real time sequencing, Illumina sequencing, iron torrent sequencing and so another type of the sequencing also comes. तो हमें जो फोकस करना है वो सैंगर मेथड पे करना है, लेकिन हम इनके बारे में भी जानते रहेंगे कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं जो मैनुअल में आते हैं और जो ऑटोमेटेड में आते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग की। डीएनए सीक्वेंसिंग कब स्टार्ट हुई? तो डीएनए सीक्वेंसिंग हम जरूर कह रहे हैं, बट आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जो पहला सीक्वेंसिंग हुआ था, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था जिसकी सीक्वेंसिंग हुई थी, वो आरएनए था, न कि डीएनए। और वो जो आरएनए था वो था एलानिन टीआरएनए। आपको पता होगा, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब पढ़ा होगा तो ट्रांसलेशन में टीआरएनए लिखा होगा, ट्रांसफर आरएनए, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना अमीनो एसिड को। तो फर्स्ट आरएनए जिसकी सीक्वेंसिंग हुई थी वो था एलानिन टीआरएनए। इट इज द ट्रांसफर आरएनए जिसको कि हम लोगों ने सीक्वेंस किया था, और इसको सीक्वेंसिंग करने वाले वही थे जिन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए दिया था। यस, रॉबर्ट हॉली। तो रॉबर्ट हॉली जिन्होंने एलानिन टीआरएनए की सीक्वेंसिंग की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जिसकी सीक्वेंसिंग हुई थी, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि एलानिन टीआरएनए है। लेकिन आप ये जानते रहिए कि इट वाज नॉट द फर्स्ट डीएनए व्हिच हैव बीन सीक्वेंस्ड, बिकॉज़ ये डीएनए है ही नहीं है, ये क्या है? ट्रांसफर आरएनए है। तो एलानिन टीआरएनए इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड व्हिच हैव बीन सीक्वेंस्ड। तो फिर ये बात हुआ कि अगर ये आरएनए सीक्वेंस हुआ तो पहला डीएनए कौन सा था जो सीक्वेंस किया गया? तो 5x174 फाज डीएनए, बैक्टीरियोफाज वायरस जिसका 5x174 है, इसके डीएनए को हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस किया। तो ये थोड़ा बहुत बेसिकली हिस्ट्री के बारे में था कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, तो आप एलानिन टीआरएनए बोलेंगे, रॉबर्ट हॉली ने किया है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट डीएनए व्हिच हैव बीन सीक्वेंस्ड, तो 5x174 का डीएनए है जिसको सीक्वेंस किया गया है।
ठीक है। लेकिन डीएनए सीक्वेंसिंग में सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग जो हुई है वो टीआरएनए की हुई है, यानी आरएनए की सीक्वेंसिंग पहले हुई है, देन डीएनए की सीक्वेंसिंग। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है डिटेल में वो चेन टर्मिनेशन मेथड या सेंगर मेथड है। तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका होल प्रोसेस क्या है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर द चेन टर्मिनेशन मेथड, व्हाट आर द सेंगर मेथड। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।